to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So children, today we all are going to continue our chapter number 4 of your geography book, and the name of your chapter is agriculture. In our previous class, we discussed about the technological and institutional reforms. We talked about green revolution, white revolution, and other institutional reforms taken by the government of India for the production of agriculture in India. Okay, so now our today's topic is contribution of agriculture to the national economy. Contribution of agriculture to the national economy. So class, agriculture, as you all know, agriculture, our 2/3 population of India is totally dependent upon agriculture for their livelihood. So agriculture has been the backbone of the Indian economy, though its shares in the gross domestic product has registered and declining trend from 1951 onwards. Most of the population of India is totally dependent upon agriculture, and it is the largest employing sector in India. ठीक है, ऑल्दो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी नेशनल इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान ऑनवर्ड्स फ्रॉम 1951 onwards, it is declining. In 2010-11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance. So for the living, for their livelihood, they are dependent on agriculture. More than 50% population is dependent on agriculture for their livelihood. So the declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern. Why it is a matter of serious concern? Because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of the economy, having wider implication for society. Obviously, more than half population is involving in the agriculture sector, and this GDP, their contribution is becoming low and low time to time. Low and low, जैसे जैसे time बढ़ रहा है, it's declining, its share is declining, right? So obviously it is a matter of concern, क्योंकि society में भी बहुत ज़्यादा इसके implications जो हैं काफी worst implication रहेंगे अगर economy में इसका GDP शेयर जो है डिक्लाइन होता रहेगा. So considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted efforts to modernize agriculture. Establishment of Indian Council of Agriculture Research, agriculture universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast, etc. were given priority for improving Indian agriculture. So as you all know, more than 50% population is directly, indirectly involved in the agriculture sector. Okay, so government thought कि it is an important activity, and they made efforts to modernize agriculture. कि हम farmers को भी क्या करते हैं, aware करते हैं, educate करते हैं. So that's why what they did, they established various institutions like Indian Council of Agriculture Research, बहुत सारी agriculture universities जहाँ पे आप particular fields में, agriculture fields में आप engineering कर सकते हैं. Veterinary services जो cattle breeding करते हैं, animal breeding करते हैं, they want doctor for the animals too, कि उनकी health कैसी है, उनकी breeding capacity कैसी है, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनका जो भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर आप व्हाटएवर फूल प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एनिमल्स के थ्रू, वो प्रोडक्शन कैसा है, ठीक है, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन है नहीं है. काफी एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स को भी एस्टैब्लिश किया हमारे गवर्नमेंट ने. हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट,
इंस्टेड ऑफ लाइक व्हीट एंड राइस, अब गवर्नमेंट जो है हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इस इनकी डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी। इनके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया गया। मेटीरियोलॉजी, मेटीरियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है, क्लाइमेट में टेम्परेचर में जो वेरिएशंस आती है, जो एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटीरियोलॉजी बोलते हैं। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेटीरियोलॉजी, वेदर फोरकास्ट, ये सारी चीजों को क्या है? इंडियन फॉर इम्प्रूविंग द इंडियन एग्रीकल्चर, ऑल दीज थिंग्स वर गिवन प्रायोरिटी, all these things were prioritized. Okay, so improving the rural infrastructure was also considered essential for the same. Obviously roads build up करवाना, bridges, irrigation facilities, electricity, ये अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना बहुत जरूरी हो गया था, बिकॉज फार्मर्स आर नाउ मोर डिपेंडेंट ऑन इरिगेशन। ठीक है, अब कुछ फार्मर्स थे जो डिपेंडेंट थे इरिगेशन पे, तो अब इरिगेशन किसके थ्रू पॉसिबल है? जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही पॉसिबल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रोड को डेवलप करना, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। सो नाउ जस्ट लुक एट द table 4 point, India growth rate of GDP and major sectors. Agriculture, 3 sectors are there: industrial sector, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में जितने भी आपके एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारी चीजें आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है, वेयर वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज, मोर एंड मोर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन होता है। फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर we are using sunlight, water, land, these are the natural resources. Okay, so primary sector हो गया। secondary sector, industrial, when we convert raw material into useful product. For example wheat है, हमने wheat प्राइमरी सेक्टर से लिया और प्राइमरी wheat को हमने कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया? बिस्किट में कन्वर्ट किया, तो इट कम्स अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर, और यू कैन से सेकेंडरी सेक्टर। आपके इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, शायद आपने वो चैप्टर कर लिया है, पायल मैम ने करवा दिया होगा, तो उसमें आप ये सब पढ़ो। उसमें आपने पढ़ा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर इज लाइक गिविंग सर्विसेज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, नर्सेज, टीचर्स, जितनी भी सर्विसेज होती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सब के सब लोग किसमें आते हैं? सर्विस सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में आते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस टेबल, ठीक है, कि जीडीपी में कौन से सेक्टर का कितना प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन है। 2013-14 में एग्रीकल्चर का 4.2% जो है कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, 2014-15 में -0.2 एंड 2015-16 में 1.1। जैसे देखो डिक्लाइन हो रहा है, इवन 2014-15 में तो माइनस में चला गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इट इज कंट्रीब्यूटिंग 5.0 2013-14, 5.9 2014-15, 7.3 2015-16। It's increasing। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देख रहे हो, जो लोग हैं, ठीक है, जो पीपल एम्प्लॉयड है वो काफी कम पीपल एम्प्लॉयड है, बट इनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है। सर्विस सेक्टर 7.8, 10.3, 9.2। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर से। So from the table 4.1, it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the years, it is not generating sufficient employment opportunities in the country. The growth rate in agriculture has been decelerating, which is an alarming situation, because more than 50% of our population is directly involved in primary sector, directly involved in agriculture, and जो एग्रीकल्चर सेक्टर का आपका कंट्रीब्यूशन है, इंस्टेड हमारी जो जीडीपी है ग्रो कर रही है, बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो डिक्लाइन होते जा रहा है, एंड इट इज
एन अलार्मिंग सिचुएशन, बहुत ही वर्सन सिचुएशन है। हमें बहुत ध्यान फोकस करना चाहिए इस सिचुएशन पे और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना चाहिए। Today, Indian farmers are facing a big challenge from international competition and reduction in the public investment. Obviously, countries public investment जो है बहुत कम होते जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अब जब इंटरनेशनल कंपटीशन आ रहा है तो इससे पब्लिक इन्वेस्टमेंट में भी काफी रिडक्शन हो रहा है। स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही कम लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। Subsidy on fertilizer is decreased, leading to increase in the cost of production. अब जो subsidy मिलती थी, subsidy, what is the meaning of subsidy? When some portion when the price of fertilizer, some price of fertilizer is paid by the government instead on behalf of yourself, on behalf of the farmers, that is known as subsidy, ठीक है। For example, there is a fertilizer like worth rupees 500 and उस 500 में से 250 rupees is paying by the government for your convenience. Now what is happening, subsidy on fertilizers is decreasing and it is leading to increase in the cost of production. Obviously fertilizers का भी cost pay करना है तो production का cost भी बहुत ज्यादा increase हो जाएगा। Moreover, reduction in import duties on agriculture production have proved detrimental to agriculture in the country. अब क्या हो रहा है, जो import duties है, moreover, reduction in import duties on agricultural products have proved detrimental to agriculture in the कंट्री। अब हमारे कंट्री में जितने भी इंपोर्ट ड्यूटीज है उसमें भी क्या हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटीज में रिडक्शन हो रहा है, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी चीजें हम दूसरे कंट्री से भी लेते आ रहे हैं। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। बहुत सारे फार्मर्स क्या कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उससे अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, और जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज्यादा क्या हो रही है, जो डाउनफॉल आ रहा है एम्प्लॉयमेंट में। ओके, सो व्हेन फार्मर्स हैव बीन facing so many problems and land under agriculture is decreasing, can we think of alternative employment opportunities in the agriculture sector? Think about this question, we will discuss it tomorrow. When farmers have been facing so many problems, जब farmers इतनी सारी problems को face कर रहे हैं, and land under agriculture is decreasing, जो agriculture, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड को भी क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज किया जा रहा है। क्या हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का कोई अल्टरनेटिव वे सोच सकते हैं, क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है? थिंक अबाउट इट एंड वी विल डिस्कस इट टुमारो। ओके, सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, वेरी concerned question is this: why are farmers committing suicides in several states of country? आपने बहुत बार न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में ये सुना होगा कि फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। like why this is happening? ठीक है, this is also an important question. As you have seen कि cost of production increase हो रहा है, drought problems हो जाती है, समटाइम्स जो है एग्रीकल्चर में उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता जितना प्रोडक्शन चाहिए होता है, लोन्स होते हैं वो फुलफिल वो पे नहीं किए जाते हैं फार्मर्स से, और ये कुछ कॉजेस है जिससे फार्मर्स क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज why are farmers committing suicides in several states of the country? ठीक है, sorry, impact of globalization on agriculture. Now what is globalization? There is a chapter in your economics book called as globalization. You will get to know about globalization in that chapter very elaborately, but globalization is like when we connect the world, ठीक है, जब हम different nations से connect करते हैं, जब मार्केट अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है वर्ल्ड वाइड, व्हेन डिफरेंट नेशंस कम टू योर नेशन एंड डू बिजनेस, एंड व्हेन यू कैन मूव टू अनदर कंट्री एंड यू कैन
grow up your business there, it is known as globalization. ठीक है, जब इंटरलिंक करना, इन शॉर्ट अभी समझ लीजिए, जब आप दूसरी कंट्रीज से लिंक करते हो, वर्ल्ड वाइड आप क्या कर सकते हो, आपस में बिजनेस करते हो, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. सो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है? So it is not a new phenomena. It was there at the time of colonization too. In the 19th century, when European traders came to India, at that time too, Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is one of the important item of export from India. So जो ये important item consider किया जाता है, किस चीज का? जो स्पाइसेस है, इंडियन स्पाइसेस 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे, ठीक है, उस टाइम पे भी क्या होता था, स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से. और आज के टाइम पे भी जो स्पाइसेस है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम है इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है. During the British period, cotton belts of India attracted the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industry. पहले क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स आए थे या फिर ब्रिटिशर्स जब कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे, ये इंडियंस जो है कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियन कंट्रीज में, तो वो फाइन कॉटन भी एक्सपोर्ट किया करते थे. बट नाउ ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को काफी अट्रैक्ट किया जो कॉटन बेल्ट्स थे, जहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का जो एरिया है, राजस्थान का जो एरिया है जहाँ पे कॉटन ग्रो होता है, और उन्होंने क्या किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जहाँ पे कपड़े बनते हैं, ठीक है, उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए ब्रिटेन में अब क्या है, कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया गया. Cotton textile industry in Manchester and Liverpool flourished due to the availability of good quality cotton from India. Manchester, Liverpool वहाँ की जो textile industries flourish कर पाई, क्यों कर पाए? Because of the fine quality cotton. ओके, जो फाइन क्वालिटी कॉटन था वो इंडिया से वहां पे भेजा जाता था, और इसके वजह से वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश करने लगी. सो आपने चंपारण मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में, ठीक है, जब गांधी जी ने 3 मूवमेंट्स किए थे, चंपारण, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, तो उसमें एक चंपारण सत्याग्रह में भी ये कॉटन के लिए ही था, जो प्लांटर्स थे उन्होंने किया था. This was started because farmers of that region was forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industry which were located in Britain. And indigo, जो आप नील समझते हो, जो नील कपड़ों में नील दी जाती है, आई थिंक आप समझते हो, नील जो है उसको ग्रो करने के लिए क्या है, फार्मर्स को ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे. बट अब इंडिगो से क्या होता है, इंडिगो ग्रो करने से लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाती है. एंड इसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया था, चंपारण मूवमेंट हुआ था, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया गया था, ठीक है, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, कलरिंग के लिए इंडिगो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी ब्रिटिशर्स को, और वो फार्मर्स को इनकरेज कर रहे थे कि आप इंडिगो क्रॉप ग्रो कीजिए. They were unable to grow food grains to sustain their families. अब कुछ families जो food crops को ही grow करती थी, अब उनको इंडिगो की वजह से अब वो भी grow नहीं कर पा रहे थे. So under globalization, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to a new challenge. Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices, our agricultural products are not able to compete with the developed नेशंस. जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है, उनके साथ हम लोग, जो इंडिया है इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है, राइस, जूट, स्पाइसेस, रबर, टी एटसेट्रा, इनका बहुत इम्पोर्टेंट जो है वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है. But instead of that, India is not able to compete with the developed countries. Why? Because of the highly subsidized agriculture in those countries. वहाँ के जो farmers हैं, उनको जो agriculture है वहाँ पे बहुत ज़्यादा subsidized है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और उनको low rates में production होती है. That's why.
Okay, so now today Indian agriculture find itself at the crossroads. To make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers. The Green Revolution promised much, but today it's under controversies. It is being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemicals, drying aquifers, and vanishing biodiversity. The key word today is gene revolution, which includes genetic engineering. Now, Indian agriculture जो है आपका उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो है जितने भी मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन काफी प्रॉमिस भी करता है, वो इम्प्रूवमेंट ला भी सकता है, बट मैनी क्रिटिक्स से मैनी कंट्रोवर्सीज आर देयर, मैनी क्रिटिक्स सेड दैट कि इससे लैंड डिग्रेड होता है, ठीक है, और हम केमिकल्स का ओवर यूज कर रहे हैं, लैंड डिग्रेड हो रहा है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर दे आर वैनिशिंग। और तो आज के लिए जो कीवर्ड यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, जीन रेवोल्यूशन, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? Genetic engineering is recognized as a powerful supplement in inventing new hybrid varieties of seeds. ठीक है, जब हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, इन्वेंट करते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस जो हैं कुछ पर्टिकुलर सीड्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो जो न्यूट्रिशन है वो उसमें डाला जाता है और उसको क्या है एक पावरफुल सप्लीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। Okay, so now can you name any gene modified seed used vastly in India? This is your homework. I will ask you tomorrow. Okay, this is your homework and we will discuss this also. When farmers have been facing so many problems and land under agriculture is decreasing, can we think of alternative employment opportunity in the agriculture sector? These two questions you have to find out. Okay, and second question is, can you name any gene modified seed used vastly in India? सो नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी फेमस है आज के टाइम पे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी लाइक ट्रेंड में मान लीजिए। In fact, organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory-made chemicals such as fertilizers and pesticides. Hence, it does not affect environment in a negative manner. Obviously, no chemical fertilizer. We are not using any chemical fertilizers, pesticides for growing crops. So that's why, like, organic farming is not affecting our environment negatively. So a few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises. India's rural population is about 833 million according to the census of 2011, which depends upon 250 million hectares of agricultural land, an average of less than half a hectare per person. So कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो सजेस्ट करते हैं कि जो इंडिया का फ्यूचर है इट इज इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लीक फ्यूचर। मतलब कि ब्लीक इज लाइक जैसे बेरंग, समझते हो, बेरंग, ब्लीक फ्यूचर, बेरंग, कलरलेस फ्यूचर। कोई ना कोई ग्रोथ शो नहीं हो रही है। So they are growing food crops, they are growing food grains on the smaller holdings on the, and जो population है वो rise होते जा रही है, ठीक है, and these population, ठीक है, 833 million farmers rural population depends upon 250 million, ठीक है, जिनको हाफ हेक्टेयर से भी कम जो है एक पर पर्सन के पास एक लैंड है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इंडियन फार्मर्स का जो फ्यूचर है वो कलरलेस है, कोई भी ग्रोथ नहीं है। Indian farmers should diversify their cropping pattern. Now there is a एक ऑल्टरनेटिव आप बोल दीजिए और एक मेथड बोल दीजिए, जो स्ट्रैटेजी बोल दीजिए जो हमारी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकती है। वो क्या है? Indian farmers should diversify their cropping pattern from cereals to high value crops. Like India is growing more cereals, wheat, rice,
शुगर केन, ये सारी चीजें ज्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है। सो दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। अब इंडियन कुछ लोगों का, इकोनॉमिस्ट का बोलना है कि अगर इंडियन फार्मर्स अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करेंगे, ठीक है, वैरायटी लाएंगे, सीरियल्स की जगह हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक जोजोबा, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स, जोजोबा, ये सारी चीजें जिसमें इरिगेशन कम लगता है, जिसमें पानी की कम जरूरत होती है, ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज आवर इनकम्स एंड जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी काफी कम होगा। Because fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops, jojoba, jojoba needs much less irrigation than rice or sugarcane. India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops. ठीक है, और इंडिया का जो क्लाइमेट है, डाइवर्सिटी इंडिया की यहाँ पे काम आएगी और हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए। So, change in cropping pattern, for example, from cereals to high value crops will remain that India will have to import food. During 1960s, India would have been seen as a disaster. India को जो बिहार फेमाइन आ गया था during 1960s, और उस टाइम पे इंडिया को यूएसए से फूड व्हीट को import करवाना पड़ा था। But if India imports cereals while exporting high value commodities, it will be the following successful. अगर इंडिया सीरियल्स को इंपोर्ट करती है, दूसरे कंट्रीज से मंगवाती है और हाई वैल्यू कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करती है, तो हमारी जो इकोनॉमी है आज की प्रेजेंट डे, इटली, इजराइल, चीन, जहाँ पे वो सक्सेसफुल इकोनॉमीज उनके जैसी सक्सेसफुल इकोनॉमी बन सकती है। क्योंकि ये जो कंट्रीज है क्या एक्सपोर्ट करते हैं, दे एक्सपोर्ट फ्रूट, ऑलिव, स्पेशलिटी सीड्स एंड वाइन, एंड इंपोर्ट सीरियल्स को इंपोर्ट करते हैं। So now this is a question, क्या हम ये रिस्क लेने को रेडी हैं? So class, this is all about this chapter. We talked about agriculture, Indian, especially Indian agriculture, and we have seen how we talked about major crops, cropping patterns, like कुछ how after independence कितने farmers की जो situations है उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट की क्या स्टेप्स रहे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या रहा इंडियन हमारा फार्मर्स का, एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें हमने बात की और कुछ स्ट्रैटेजीज पढ़ी जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट आ सकती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एवरीबॉडी।